Hey kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. Here we are studying English channel book where we are on unit number 3 and the section C. The name of the chapter is The Shadow and the Flash, which has been written by Jack London. Now this is again an abridged version, which means that the story is same as per the real story, the real novel. The only thing is this is a shortened version. Okay. Now आप में से कितने लोगों को इनविजिबल होने का मन करता है? हैव यू एवर ट्राइड इनविजिबिलिटी? अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि आप इनविजिबल हो जाओ, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू डू? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ इनविजिबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट जिस पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सालों से काम कर रहे हैं. कुछ लोग थियोरेटिकली बोलते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल, कुछ लोग बोलते हैं नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट टिल नाउ वी हैव ओनली सीन इट इन कार्टून मूवीज और सीरियल्स एंड बुक्स, बट दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन रियलिटी. Now this particular story is based on the same thing where there is a competition between two people, but it's not a healthy competition, it's a rivalry. Rivalry का मतलब होता है दुश्मनी. एक ऐसा कंपटीशन जिसमें आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए जो है compete कर रहे हो. you're not competing just because आपको अपना आर्ट दिखाना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना टैलेंट दिखाना है. आप किसी को नीचा गिराने के लिए वो काम कर रहे हो. So now let's read this chapter, but before we start with the chapter, let's read something about our author, who is Jack London. Jack London, who lived from 1876 to 1916, was in his lifetime one of the most popular authors in the world. पूरी दुनिया में इस particular era के वो बहुत ही popular author थे. In his writing career, he produced 50 books and several short stories. तो अपने पूरे जो writing career था उनका, उसमें उन्होंने बहुत सारी books, almost 50 books और कई सारी short stories publish की थी. The Call of the Wild and White Fang are two of his most popular books. तो जो दो बहुत ही जानी मानी बुक्स हैं उनके द्वारा लिखी गई वो है Call of the Wild and White Fang. Now we are going to start the story. This is really interesting. The ending is on you. कि आपको लगता है कैसी ending है उसकी, वो आप मुझे बताना in the comment section. But as of now, let's start. Paul Tichborne and Lloyd Inwood seemed born to rivalry with each other. Now here हमारे जो दो main characters हैं वो हैं Paul Tichborne और Lloyd Inwood. ये दोनों ऐसा लगता था ये लोग दुश्मनी एक competition के लिए ही पैदा हुए हैं. Seemed born to rivalry with each other. Seemed मतलब ऐसा लगता था कि ये लोग जो है दुश्मनी करने के लिए ही पैदा हुए हैं. इनके बीच में जो ये competition था ये हमेशा से था. And I to be the peacemaker between them. Now that entire story has been narrated. जो speaker है हमारे वो एक third person है, let's say Jack London है. तो ये जो I है ये है हमारा speaker और हमारा speaker क्या बोल रहा है कि ये दो लोग हैं जो लोग ऐसा लगता था दुश्मनी कंपटीशन करने के लिए ही पैदा हुए हैं और मैं हमेशा से उनके बीच में पीस लाने का काम करता था. मतलब जैसे झगड़ा हो जाता था तो मैं नॉर्मल करने का काम करता था. They were always competing, trying to outdo each other. वो हमेशा ही compete करते रहते थे. मतलब तुम्हारे अगर 10 on 10 आए तो मेरे जो है वो 10 on 10 से कम हो नहीं सकते. Plus I need something extra. They always try to outdo each other. Outdo का मतलब होता है एक से दूसरे को मतलब उससे better काम करना. Outdo का मतलब होता है be superior or in action to in एक्शन और परफॉर्मेंस. मतलब किसी भी एक्शन में या परफॉर्मेंस में सामने वाले से बेटर करना. तो यू आउट डू द अदर पर्सन. When Paul Tichborne entered college, he decided to study the natural sciences, specializing in chemistry. तो जब ये लोग कॉलेज पहुंचे तो स्कूल से ही इनकी राइवलरी चल रही थी. जब ये लोग कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में पॉल ने क्या डिसाइड किया कि उसको नेचुरल साइंसेस पढ़ना है और नेचुरल साइंसेस में उसको स्पेशलाइजेशन करना था केमिस्ट्री में. नाउ केमिस्ट्री जो इट्स अ फील्ड ऑफ साइंस. लॉयड फॉलोड पॉल्स लीड.
Their rivalry soon became a noted thing throughout the university. अब अगर पॉल जो है नेचुरल साइंसेस में कर रहा था, वो भी स्पेशलाइजेशन कर रहा था केमिस्ट्री में, तो लॉयड ने भी उसी को फॉलो किया एंड ही ऑल्सो टुक द सेम सब्जेक्ट. उसने भी नेचुरल साइंसेस में ही करना चाहा विथ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री. अब क्या हुआ, उन लोगों की जो राइवलरी थी ये पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई. मतलब सबको पता था कि ये दोनों पक्के राइवल्स हैं, ये दोनों पक्के दुश्मन हैं, पक्के कॉम्पिटिटर्स हैं. Each was a spur to the other. Each was a spur to the other. स्पर का मतलब क्या होता है? स्पर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं नहीं नहीं यू कैन डू दिस, कम ऑन यू कैन डू दिस, मैं आपको पोक कर रही हूँ, नहीं नहीं यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी बेटर. ये होता है एक मोटिवेशनल स्पर. और एक होता है उसके मार्क्स इतने कैसे आए, अब मुझे तो उससे ज्यादा चाहिए. तो दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मोटिवेशन नेगेटिवली, बट येस इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. तो स्पर मतलब क्या होता है कि आप उकसा रहे हो किसी को कि नहीं इसने इतना किया ना, मुझे इससे बेटर करना है. तो एक दूसरे के लिए वो यही काम करते थे. So and they went into chemistry deeper than any student had gone before. और वो लोग इसके कारण कि नहीं अगर इसको इतना आता है मुझे इससे ज़्यादा आना चाहिए, तो इस चक्कर में they went deep inside chemistry. तो वो लोग और ज़्यादा पढ़ने लग गए क्योंकि ज़्यादा नॉलेज चाहिए था. तो दोनों इंटेलिजेंट थे and they wanted to be better than one another and that's why they digged deep into chemistry. और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री में उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली. It was at my home after they had taken their degrees and dropped out of the world's sights that the beginning of the end came to pass. Now it was at my home. अब ये बता रहे जो हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने क्या बोला, ये मेरे घर की बात है. फाइनली कॉलेज वॉज ओवर, सब अपनी अपनी डिग्रीज ले चुके थे एंड दीज टू पीपल दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड साइट. मतलब ना वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, उनका कोई ऐसा कोई खास फ्रेंड सर्कल नहीं था. तो फाइनली इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब अंत की शुरुआत हुई. केम टू पास का मतलब होता है टू हैपन. तो किस तरीके से अभी वो क्या कहना चाह रहा है कि एक अंत की शुरुआत हुई थी मेरे घर से. इसका मतलब ये जो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है वो हम देखते हैं. On the day I have in mind, मैं उस दिन बात मतलब जो दिन मुझे याद है, जिस दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. Paul Ticklon had been absorbed all morning in my study over a scientific journal. So Paul जो था वो हमारे स्पीकर के घर आया था और वो उसका जो स्टडी रूम था उसमें एक साइंटिफिक जर्नल था. He was all absorbed in it. इसका मतलब वो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा था, उसका ध्यान कहीं और नहीं था, वो सिर्फ उस साइंटिफिक जर्नल को पढ़ रहा था. I was out in the garden when Lloyd Inwood arrived. अब वो जब स्टडी रूम में है, वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं यूं ही गार्डन में गया. जब मैं गार्डन में गया तब वहाँ पे लॉयड आया था ना. लॉयड पॉल दे आर राइवल्स, लेकिन वो दोनों स्पीकर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं. सो लॉयड वहाँ पे आया. We soon began discussing the physical properties and possibilities of invisibility. अब ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं और सब के सब बहुत इंटेलिजेंट थे. तो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग व्हाट कि इनविजिबिलिटी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या फिजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है. इसका मतलब किस तरीके की चीज़ें ज़रूरी होती है, किस तरीके का रिफ्लेक्शन. जैसे हमें पता है कोई भी चीज़ इनविजिबल कब होती है, जब लाइट उससे पास होके चला जाए. क्योंकि जब लाइट किसी भी चीज़ पे पड़ती है और उसके बाद वो वापस हमारी आंखों तक आती है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनविजिबिलिटी की क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान या कोई चीज़ इनविजिबल हो सकती है, ये सारी चीज़ें वो लोग डिस्कशन कर रहे थे. A perfectly black object, Lloyd asserted, would escape and resist the sharpest vision. तो लॉयड ने क्या बोला, अगर कोई चीज़ जैसे रात हो जाती है तो रात में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती. क्यों? क्योंकि परफेक्ट ब्लैक हो जाता है. तो लॉयड ने कहा अगर कोई परफेक्टली ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, वुड एस्केप एंड रेजिस्ट द शार्पेस्ट विजन. अगर एकदम परफेक्टली कोई ब्लैक चीज़ है तो वो हमको नहीं दिखेगी. शार्पेस्ट विजन मतलब अच्छे से अच्छी आंख अगर आपकी हो जाएगी, आपकी जो विजन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तब भी आपको वो नहीं दिखेगा. अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्लैक कलर का कपड़ा है, कोई ब्लैक कलर की चीज़ है तो वो तो हमें दिख जाती है, दिन में भी दिख जाती है, रात में भी दिख जाती है.
लेकिन परफेक्ट ब्लैक नहीं होता वो। यहाँ आप देखते हैं वो क्या बोल रहा है, कलर इज अ सेंसेशन। कलर क्या है, एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है। ही वॉज सेइंग इट हैज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कलर का कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट कैन बी प्रूवन। ऑब्जेक्टिव मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट कैन बी प्रूवन, मतलब कोई फैक्चुअल रियलिटी नहीं है। कलर सिर्फ और सिर्फ एक सेंसेशन है। विदाउट लाइट वी कैन सी नीदर कलर्स नॉर ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। अगर लाइट नहीं होगी तो ना हमें कलर्स दिखेंगे और ना हमको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैक इन द डार्क एंड इन द डार्क इट इज इम्पॉसिबल टू सी देम। अगर लाइट नहीं है, अगर एकदम ज्यादा अंधेरा है, लाइक डार्केस्ट ऑफ द डार्क नाइट है, तो अगर कोई चीज कलरफुल है, कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, वो कोई भी कलर की हो, आपको नहीं दिखेगी। रात में आपको हर चीज डार्क दिखती है, काली दिखती है। इफ नो लाइट स्ट्राइक्स अपॉन देम, अगर उसके ऊपर लाइट ही नहीं पड़ेगी, देन नो लाइट इज फ्लंग बैक फ्रॉम देम टू द आई। अगर उस पर लाइट ही नहीं पड़ रही है, अगर वो ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है, अगर रात में क्या होता है, जब उस पर लाइट ही नहीं पड़ रही तो वो लाइट वापस हमारी आंख की तरफ आ ही नहीं रही है। एंड सो वी हैव नो विजन एविडेंस ऑफ देयर बीइंग, इसलिए वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो दिस वाज जो टोटल जो है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, उसने बोला कि क्या होता है जब रात में अगर उस चीज़ पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो जब लाइट पड़ी नहीं तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं है, हमें वो चीज़ दिखी नहीं, तो उसका कोई एविडेंस ही नहीं होता। बट वी सी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स इन डे लाइट, आई ऑब्जेक्टेड। तो जो हमारे स्पीकर ने बोला तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन दिन में तो हमें ब्लैक ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना। अगर जैसे मान लो मेरा कैमरा ब्लैक कलर का है, मेरे पास एक टी शर्ट है ब्लैक कलर की, मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर की, तो वो हमें दिन में कैसे दिखते हैं अगर ब्लैक पे लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट नहीं होती तो। वेरी ट्रू ही सेड, एंड दैट इज बिकॉज दे आर नॉट परफेक्टली ब्लैक। दिस इज वॉट आई सेड कि उसने क्या कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि दिन में तो हमें ब्लैक चीज़ें दिखाई देती हैं। उसका रीज़न ये है कि वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होते। दे आर ओनली लाइक ब्लैक पिगमेंट जो होता है उसमें वो होता है, लेकिन वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होते। वर दे परफेक्टली ब्लैक, एब्सोल्युटली ब्लैक, वी कुड नॉट सी देम इन लाइट एज वेल। अगर वो परफेक्टली ब्लैक होते, मतलब एब्सोल्यूट ब्लैक होते, तो हम उसे दिन में भी नहीं देख पाते। ये उसका कॉन्सेप्ट था। एंड सो आई से विद द राइट पिगमेंट्स properly combined, an absolutely black paint could be produced which would make invisible whatever it was applied to। तो अब उसने क्या कहा, इसीलिए मेरा कहना ये है कि अगर हमें राइट पिगमेंट्स मिल गए, पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस यूज फॉर कलरिंग और पेंटिंग। तो जैसे आप कभी भी कोई कलर करते हो, रेड कलर करते हो, व्हाइट कलर करते हो, येलो कलर करते हो, तो उसमें क्या होता है, बेसिक कलर जो आपका व्हाइट कलर है या कोई भी बेसिक कलर है उसमें आप पिगमेंट्स डालते हो और तब जब आप उसे मिलाते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो उसने क्या बोला, अगर मुझे राइट पिगमेंट्स मिल गए तो मैं क्या कर सकता हूं, और उन राइट पिगमेंट्स को अगर मैं प्रॉपरली कंबाइन करूं, देन उससे एक एब्सोल्युटली ब्लैक पेंट जो है वो बनाया जा सकता है, जिससे कोई भी चीज जिसमें भी आप वो ब्लैक पेंट लगाओगे वो इनविजिबल हो जाएगा। नाउ दिस वाज हिज कॉन्सेप्ट। It would be a remarkable discovery, I said, still unconvinced। अब मुझे अभी तक उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या लिटरली इस तरीके की चीज़ डिस्कवर की जा सकती है, तो मुझे जो है मतलब इन्वेंट की जा सकती है, तो मुझे इस चीज़ पे भरोसा तो नहीं हो रहा था, मतलब मैं प्रॉपरली कन्विंस्ड नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, इट वुड बी अ रिमार्केबल डिस्कवरी, मतलब या अगर तुमने ये कर पाए तुम, तो ये एक रिमार्केबल डिस्कवरी हो जाएगी, मतलब अभी तक कोई नहीं कर पाया है। For the whole idea seemed too fantastic। अब मैं उस पर यकीन तो नहीं कर पा रहा था, बट दैट इज साइंस। किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था कि ह्यूमंस जो हैं वो हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन आज हम प्लेन में फ्लाई कर पाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आप अंडरग्राउंड जो है मूव कर पाओगे, लेकिन आप सब ट्रेन्स, आपके मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, सबवेज होते हैं, एंड यू आर एबल टू डू दैट। तो सिमिलरली जब उसने बोला, तो बीइंग लाइक अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, व्हाट डिड ही से कि थोड़ा अनबिलीवेबल है, थोड़ा कन्विंसिंग कम है, बट अगर ये हुआ तो इट वुड बी अ रिमार्केबल डिस्कवरी। रिमार्केबल, लॉयड स्लैप्ड मी ऑन द शोल्डर। तो पीछे से कौन आया, लॉयड आया। रिमार्केबल, और उसने उसके शोल्डर पे
जो स्पीकर जो बोल रहा था, या इट वुड बी रिमार्केबल, उसके शोल्डर पे इस तरीके से उसने एक हाथ रखा. I should say so. Why, old chap, to coat myself with such a paint would be to put the world at my feet. And I, he broke off shortly, then added, well, I have begun my experiments and I don't mind telling you that I am on the right track. तो लॉयड ने क्या कहा? अब लॉयड को अच्छा लग रहा था, वो अपनी डिस्कवरी के बारे में बता रहा था, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था. उसने क्या बोला? आई शुड से सो. Why, old chap, to coat myself with such a paint? तो उसने क्या कहा? तो मैं ऐसा एक पेंट बनाऊंगा और मैं खुद को उससे कोट कर लूंगा. Would be to put the world at my feet. और अगर मैंने उसको खुद पे कोट कर दिया और अगर मैं इनविजिबल हो गया तो पूरी दुनिया मेरे कदमों पे होगी. And I, he broke off shortly, then added. तो I बोल के वो 2 मिनट के लिए चुप हुआ और फिर उसने क्या बोला? Well, I have begun my experiments. तो उसने कैसे बोला? And I, well, I have begun my experiments. मतलब when you are proud of your work. तो जिस तरीके से आप बात करते हो, he was talking like that. उसने क्या कहा कि मैं अपने experiments को सही ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ. And I don't mind telling you that I am on the right track. तो और मुझे तुम्हें बताते हुए मतलब यू नो आई कैन ईजीली टेल यू दैट मैं एकदम सही ट्रैक पे जा रहा हूँ. इसका मतलब जो उसने ये पूरी थ्योरी डेवलप करी है कि इनविजिबिलिटी, अगर आप किसी भी परफेक्टली ब्लैक अगर इस कलर को अचीव कर लो और उस कलर को किसी भी चीज़ पे पेंट कर दो तो आपका वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और वो चीज़ इनविजिबल हो जाएगी. सो नाउ ही इज़ trying to achieve the perfect black. Okay. A laugh from the doorway startled us. Paul Tickborne was standing there, a smile or mockery on his lips. तो जब ये दोनों बात कर रहे थे अचानक से एक हंसने की आवाज आई. A laugh from the doorway startled us. Startled का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड. दो लोग एकदम एक कॉन्वर्सेशन में जो है मग्न हैं, अचानक कोई हंसेगा तो आप एक तरीके से सरप्राइज होकर देखने लग जाते हो ना कि आवाज कहाँ से आई. तो एकदम से एक आवाज आई, एक हंसने की आवाज आई which surprised us. पॉल टिकबोर्न वॉज स्टैंडिंग देयर. अंदर कौन खड़ा था? जो स्टडी में पॉल जो है एक साइंटिफिक जर्नल पढ़ रहा था, वो अभी बाहर आ चुका था. उन्होंने इनकी बातें सुन ली थी. अ स्माइल और मॉकरी ऑन हिज लिप्स. उसके फेस पे क्या था? एक ऐसी स्माइल थी जो मजाक उड़ाने वाली स्माइल नहीं होती, जैसे अगर आपको लगता है हाँ जो तुम बोल रहे हो वो कितना स्टूपिड है, तो इस तरीके की एक स्माइल जो थी उसके फेस पे थी. यू फॉरगेट माई डियर लॉयड, ही सेड. तुम भूल गए मेरे माई डियर लॉयड, तुम एक चीज भूल गए. फॉरगेट व्हाट? लॉयड ने क्या बोला? क्या भूल गया मैं? यू फॉरगेट, पॉल वेंट ऑन. यू फॉरगेट द शैडो. तब पॉल ने क्या बोला? अरे तुम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए. तो लॉयड ने बोला मैं क्या भूल गया? तुमने ये तो भूल गए कि ठीक है तुम परफेक्ट एक ब्लैक कलर तो बना लोगे, लेकिन तुम शैडो का क्या करोगे? शैडो तो आएगी, किसी भी चीज की शैडो तो आएगी. भले वो चीज में तुमने कलर कर दिया बट उसकी शैडो तब भी आएगी. I saw Lloyd's face drop, but he answered sneeringly, I can carry a sunshade, you know. तो लॉयड अचानक से उसने सोचा कि हाँ इस बारे में तो शायद मैंने सोचा नहीं था. उसका फेस ड्रॉप हो गया, उसका मतलब उसका चेहरा उतर गया, वो एकदम से सोचने लग गया, लेकिन बहुत ही स्नेयरिंगली उसने आंसर किया. स्नेयरिंगली का मतलब क्या होता है? विथ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, जिसमें आप सामने वाले को बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो. स्नेयरिंगली उसने क्या कहा? आई कैन कैरी अ सनशेड, यू नो, मतलब मैं एक सनशेड कैरी कर सकता हूँ. Then he turned suddenly and fiercely upon him. Look here, Paul, you will keep out of this if you know what's good for you. उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा, तुरंत मुड़ा और उसने पॉल से क्या कहा? Look, Paul, देखो पॉल, you will keep out of this. तुम इस चीज़ से दूर रहोगे if you know what's good for you. अगर तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है तो तुम मेरे इस कॉन्सेप्ट से दूर रहना. बिकॉज दोनों को पता था, दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट हैं एंड दे ऑलवेज ट्राई टू आउट डू ईच अदर. तो पॉल नहीं चाहता था कि मतलब लॉयड नहीं चाहता था कि पॉल उस चीज़ में किसी भी तरीके की एंट्री करे. ही वॉन्टेड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी टू हिमसेल्फ. A fight seemed close at hand, but Paul laughed good-naturedly. मुझे लगा बस अब एक जो है लड़ाई होने ही वाली है, लेकिन पॉल जो था उसने बहुत ही गुड नेचर्डली क्या बोला? आई वुडेंट ले फिंगर्स ऑन योर डर्टी पिगमेंट्स.
तो पॉल ने क्या कहा, बहुत ऐसे कि हाँ मैं जो हूँ तुम्हारी ये जो गंदी सी जो तुम्हारी थ्योरी है, तुम्हारी जो ये डर्टी तुम एकदम परफेक्ट ब्लैक पिगमेंट बनाना चाहते हो, आई वुड नॉट ले माई फिंगर्स, इसका मतलब क्या होता है, आई वुडंट टच इट, आई वुड नॉट गेट इन टू इट। यू मे सक्सीड बियॉन्ड योर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तुम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कितने भी पॉजिटिवली सोचने लग जाओ, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस एकदम पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा सक्सेसफुल होना इज वेरी लाइक वेग, बहुत ही ज़्यादा हेजी है। येट यू विल ऑलवेज एंड अप अगेंस्ट द शैडो, तुम कितना भी डार्क पिगमेंट बना लो, तुम कितना भी एकदम परफेक्ट ब्लैक कलर को अचीव कर लो, लेकिन तुम हमेशा एक शैडो के साथ रह जाओगे। You can't get away from it. Now I shall go on the very opposite track. My line of inquiry will be to do away with the shadow. अब पॉल ने क्या कहा, तुम कभी भी शैडो से नहीं भाग सकते, शैडो तो आएगी ही आएगी, तुम सनशेड ले लो या कुछ भी ले लो, शैडो तो आएगी ही आएगी। नाउ आई शैल गो ऑन द वेरी ऑपोजिट ट्रैक। अब लॉयड ने क्या बोला, उसको इनविजिबिलिटी अचीव करनी थी विथ परफेक्टली ब्लैक कलर। इसने बोला मैं एकदम ऑपोजिट ट्रैक पे जाऊंगा। माई लाइन ऑफ इंक्वायरी, लाइन ऑफ इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू आंसर थ्रू रीडिंग एंड रिसर्च। बेसिकली माई लाइन ऑफ इंक्वायरी का यहाँ मतलब है, जो मेरी रिसर्च चल रही है, विल बी टू डू अवे विद द शैडो, मतलब मैं इसमें यहाँ जितना भी मेरी रिसर्च चल रही है वो है बिना शैडो के काम करना। ट्रांसपेरेंसी, इजैक्यूलेटेड लॉयड, उसने बोला बिना शैडो के, मतलब तुम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाओगे तुम। इजैक्यूलेटेड लॉयड, इजैक्यूलेट का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग क्विकली एंड सडनली। अब दोनों इंटेलिजेंट थे, एज एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू। तो जैसे उसने बोला कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जिसमें शैडो आएगी ही नहीं, शैडो कौन सी चीज में नहीं आती, जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसने बोला ट्रांसपेरेंसी, बट इट कैंट बी अचीव्ड। तो उसने क्या कहा, तुम ट्रांसपेरेंसी अचीव करना चाहते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो अचीव की ही नहीं जा सकती। ओह नो, ऑफ कोर्स नॉट। एंड पॉल श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड स्ट्रोल्ड ऑफ। उसने क्या बोला, हाँ हाँ बिल्कुल अचीव नहीं की जा सकती। एंड ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, और उसने श्रग किया अपने शोल्डर्स को और वो वहां से चला गया। स्ट्रोल्ड ऑफ, स्ट्रोल्ड ऑफ का मतलब क्या है, ही वॉक्ड अवे। श्रग मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे कंधे उचका लेते हो ना, डिसमिस समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, लाइक हाँ नहीं की जा सकती, कि इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट। तो उसने बोला, जैसे ही उस लॉयड ने बोला तुम ट्रांसपेरेंसी से इनविजिबिलिटी अचीव करना चाहते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इज नॉट पॉसिबल। तो उसने क्या कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉट पॉसिबल। एंड ही जस्ट वॉक्ड अवे गिविंग हिम अ क्वेश्चन। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इट, और ये थी उस अंत की शुरुआत। Both men attacked the problem with all the tremendous energy for which they were noted, and with a bitterness that made me tremble for the success of either. अब दोनों ही लोग जो है इस इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अचीव करने में लग गए, और एकदम फुल उनका जितना पावर था, उनकी जितनी एनर्जी थी, वो पूरी उन्होंने इसमें लगा दी, जिसके लिए वो जाने जाते थे, क्योंकि अगर वो कोई भी काम करते थे तो उसमें एकदम अंदर तक घुस जाते थे। लेकिन देयर वाज अ बिटरनेस। क्या बिटरनेस थी, दे डिड नॉट वॉन्ट टू अचीव इनविजिबिलिटी जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू हेल्प द सोसाइटी, और दे वॉन्टेड टू लाइक दे हैड द टैलेंट, और वो कुछ करना चाहते थे अपने नेशन के लिए या अपने साइंस फील्ड के लिए। वो ये क्यों करना चाहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो जिस बिटरनेस के साथ ये चीज़ चालू हुई थी, हमारा स्पीकर बोल रहे हैं कि जिस बिटरनेस के साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई, उसको ये लगा कि पता नहीं अगर इन दोनों में से किसी ने भी इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर अचीव कर लिया तो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। नाउ ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, उसको लगा कि ही वॉन्टेड कि भाई किसी का भी ना हो। क्यों? क्योंकि उसे पता था इस चीज़ का असर बहुत खराब हो सकता है। I visited Lloyd's laboratory a number of times after that day and found him always deep in his search after the absolute black. अब Lloyd जो था, he wanted to achieve perfect black, and
Paul, he wanted to achieve transparency. तो अब हमारे स्पीकर बोल रहे हैं जिस दिन वो डिस्कशन हुआ था मेरे घर पे, उसके बाद मैं कई बार लॉयड की लेबोरेटरी में गया, उससे मिलने गया, उससे हाई हेलो करने गया. एवरी टाइम वो अपनी लेबोरेटरी में होता था, रिसर्च कर रहा होता था, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली एनग्रॉस्ड इन इट. मतलब वो पूरा उसमें डूबा हुआ था. White light is composed of 7 colors, he argued to me. तो जब साइंटिस्ट जो होते हैं, जो लोग किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो दे टॉक अबाउट इट. तो नाउ हियर लॉयड वाज टॉकिंग टू द स्पीकर. लॉयड ने क्या बोला कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. ही आर्ग्यूड विथ मी. सो उसने कहा कि वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, बट इट इज़ इटसेल्फ इनविजिबल. लेकिन वो जो है अपने आप में इनविजिबल होती है. Only by seeing reflected from objects do it and the objects become visible. अब यहाँ पे क्या होता है? Only by being reflected from objects do it and the objects become visible. ये आपने भी देखा है कि नॉर्मल आपके पास आजू बाजू लाइट है, लेकिन आपको लाइट नहीं दिखती, आपको वाइट लाइट नहीं दिखती. लेकिन अगर उस पर पानी पड़े या अगर आपको एक छनती हुई आती है तो आपको क्या होता है? एक रेनबो जैसा दिखता है, आपको पूरे 7 कलर्स उसके दिखते हैं. सिमिलरली जब ये वाइट लाइट जो होती है, ये लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, हमें उसका कलर दिखाई देता है. बट ओनली द पोर्शन ऑफ इट दैट इज रिफ्लेक्टेड बिकम्स विजिबल. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जिस ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये मान लो मेरा हाथ है, तो अगर इस हाथ के इतने पार्ट पे लाइट है तो मुझे बस उतना ही पार्ट दिखेगा, मुझे पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है. When we paint our houses, we do not apply color to them. अगर जब हम अपने घरों को पेंट करते हैं, आप ब्लू कलर करो, आप ब्लैक करो, आप वाइट करो, आप येलो कलर करो, तो जब हम अपने घरों को पेंट करते हैं तो हम उसमें कलर नहीं अप्लाई कर रहे हैं. What did he say? What we do is to apply certain substances that have the property of absorbing from white light all the colors except those that we would have our houses appear. अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. लॉयड ने कहा जब आप अपने घर को पेंट करते हो, आपको लगता है आप रेड कलर कर रहे हो या आप येलो कलर कर रहे हो या आप ब्लू कलर कर रहे हो. एक्चुअली आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अप्लाई कर रहे होते हो जिसकी वजह से जब वाइट लाइट पड़ती है, जिसमें ये पूरे 7 कलर्स हैं, तो जो कलर आप दिखाना चाहते हो उसको छोड़ के बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. Understand what is written here. This is very important. What we do is to apply certain substances. हम कुछ ऐसे substances apply करते हैं that have the property of absorbing from white light. जिसमें प्रॉपर्टी होती है जो कि वाइट लाइट से क्या करता है? सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट दोज, उन कलर्स को छोड़ के जिन कलर को हम दिखाना चाहते हैं. जैसे अगर मुझे येलो कलर दिखाना है तो क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास कलर है विबग्योर, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ अगर कि येलो कलर दिखे तो मैं एक ऐसा पिगमेंट लगाती हूँ जिससे वाइट लाइट जो होगी ना, वो ये सब, मतलब वो जो मैंने पिगमेंट लगाया है, जो भी सब्सटेंस लगाया है, उसमें ये सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको सोख लेगी. सिर्फ एक कलर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी जो कि होता है येलो, और वही फिर हमको अपेयर होता है कि वो येलो कलर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लैक. ओके, तो जब अब इसमें वाइट लाइट पड़ रही है तो ब्लैक के अलावा सारे कलर्स जो हैं एब्जॉर्ब हो गए हैं, तभी मुझे ये ब्लैक दिख रहा है. दिस इज रेड. तो इसमें जब लाइट पड़ रही है तो रेड के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, इसलिए मुझे इसमें सिर्फ रेड कलर दिख रहा है. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. When a substance reflects all the colors to the eye, it seems to us white. और जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर हो जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी कलर वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो कैसा दिखेगा वो? तब वो वाइट दिखने लग जाएगा. Now this was his concept. When it absorbs all the colors, it is black. अब अगर वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो दिखता है ब्लैक कलर का. But as I said before, we have as yet no perfect black. लेकिन जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, अभी तक परफेक्ट ब्लैक कलर हम अचीव ही नहीं कर पाए हैं. All the colors are not absorbed. सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाते. The perfect black
guarding against bright lights will be absolutely invisible. उसने क्या बोला कि अगर कोई मैंने परफेक्ट ब्लैक कलर बनाया जो कि वाइट लाइट आएगी और जिसमें सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब होंगे, वो होगा आपका प्रॉपर परफेक्ट ब्लैक जो आपको एब्सोल्युटली इनविजिबल कर देगा. I used to find Paul Ticklone similarly occupied with his own line of research. अब यहाँ पे लॉयड क्या चाहता है? लॉयड चाहता है परफेक्ट ब्लैक कलर को अचीव करना. अब जो हमारा स्पीकर है वो बोल रहा है जब भी मैं पॉल से मिलने जाता था वो भी अपनी लाइन ऑफ रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था. I used to find Paul Ticklone similarly occupied with his own line of research. Transparency, a state of quality of body which permits all rays of light to pass through, he defined for me. That is what I'm seeking. अब तो वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि transparency, a state of quality of body which permits all rays of light to pass through. Transparency होती क्या है? वो ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन कर रहा है अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बॉडी. बॉडी की एक ऐसी स्टेट या ऐसी क्वालिटी विच परमिट्स ऑल रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू, जो सारी लाइट्स को अपने आप से पास होने देती है, किसी भी कलर को, किसी भी लाइट को रोकती नहीं है. ही डिफाइंड फॉर मी. तो उसने मुझे बताया कि ट्रांसपेरेंसी ये होती है. क्या होती है ट्रांसपेरेंसी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन. ट्रांसपेरेंसी मतलब जब लाइट कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़े तो वो एक भी चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट जो है वो पूरी की पूरी निकल जाए. ठीक है, जहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सारी की सारी जो लाइट है वो पास हो जाए, इसको बोलते हो ट्रांसपेरेंसी. दिस इज व्हाट आई एम सीकिंग. और यही चीज़ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे लाइट पास हो जाए. अगर मैंने अपने ऊपर एक कलर बना दिया या मैंने अपने ऊपर वो चीज़ यूज़ करी तो क्या होगा, लाइट मुझसे पास हो जाएगी. जब मुझ पे आके रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, एक्सक्यूज मी, जब मुझ पे आके रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो मैं दिखूंगा ही नहीं. A transparent body casts no shadow. अब उसने यहाँ पे क्या बोला, उसने यहाँ पे इस चीज़ की पॉजिटिव चीज़ भी बताई कि कोई ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है उसका कभी कोई शैडो नहीं होता. Neither does it reflect light waves. That is, the perfectly transparent does not. अगर कोई चीज़ perfectly transparent है तो क्या होगा, ना उसका शैडो आएगा और ना उसमें लाइट वेव्स पास हो, मतलब लाइट वेव्स टकरा पाएंगी, रिफ्लेक्ट हो पाएंगी उससे. I'm looking for the proper chemicals which acting upon the living organism will turn it to transparency. अब मैं कुछ ऐसे केमिकल्स ढूंढ रहा हूँ, मैं एक परफेक्ट वो वाले केमिकल्स ढूंढ रहा हूँ जो अगर मैंने उनको जो एक प्रॉपर उसको जो है एक सोल्यूशन बना के अगर मैंने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगा दिया तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. All light will pass through it. It will be invisible. It will cast no shadow. तो उसने क्या कहा, अगर मैंने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ऐसा कोई भी सोल्यूशन बना लिया तो क्या होगा, लाइट उस चीज़ के थ्रू पास हो जाएगी. जैसे कि मान लो मैंने अपने ऊपर वो चीज़ लगा ली, वो सोल्यूशन लगा लिया तो लाइट मुझसे पास हो जाएगी और ना कोई शैडो फॉर्म होगा ना कोई कलर दिखेगा. A few weeks went by. अब कुछ हफ्ते निकल गए. I went over to Lloyd's place. मैं लॉयड के घर गया. When I came upon the glade where his laboratory stood, I found to my complete astonishment no sign of the building. कुछ ही हफ्तों बाद जब हमारे जो स्पीकर थे वो लॉयड के घर पे गए, so I went over to his place और जब मैं वहाँ पे I came upon the glade. Glade का मतलब क्या होता है, a clearing in the middle of a forest. मतलब जैसे कि एक जगह है जहाँ पे लॉयड का घर था, अचानक से उसने देखा वहाँ कुछ नहीं था. जहाँ पे उसकी लेबोरेटरी होती थी, आई फाउंड टू माई कंप्लीट एस्टोनिशमेंट, मतलब मैं सरप्राइज्ड हो गया कि जहाँ पे कल तक उसकी लेबोरेटरी थी, नो साइन ऑफ द बिल्डिंग, आज वो बिल्डिंग पूरी की पूरी गायब है. जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी मॉल पे जाते हो, रोज़ जाते हो, आप रोज़ उसे देखते हो, अचानक से एक दिन वो मॉल दिखा ही नहीं आपने वहाँ पे, या आपके घर की जगह पे वो जगह एकदम खाली है, एकदम ही वो ब्लैंक स्पेस है, तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया उस चीज़ को देख के. I started to walk across what had been once its site. तो अब जहाँ उसका घर हुआ करता था मैं वहाँ पे चलने लगा. All of a sudden, I struck my toe on some obstacle. अब क्या हुआ, मुझे लगा यार यहाँ तो कुछ नहीं है और मैं चलने लगा और चलते चलते अचानक से मैं किसी चीज़ से टकराया. Something कुछ नहीं है.
इट्स एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, सामने ऐसा लग रहा है कि देयर इज नथिंग, सिर्फ ज़मीन है। लेकिन जब उसने पैर रखा तो उसे लगा वो किसी चीज़ से टकराया, किसी ऑब्स्टिकल से, मतलब किसी भी चीज़ से वो टकराया। Pitched forward and butted my head into something that felt very much like a door. और क्या हुआ, जैसे ही मैं टकराया उस चीज़ से तो मैं और आगे जब मूव हुआ तो मेरा जो सर है वो भी एक चीज़ से बैंग किया, मतलब मेरा सर टकराया। और किस चीज़ से, ऐसा लगा कि शायद दरवाज़ा जैसा है, एक दरवाजे जैसी चीज़ से मेरा सर टकराया था। I reached out my hand. It was a door. और फिर जैसे ही मुझे लगा यहाँ तो कुछ नहीं, टकराया मैं किससे। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो देखा, ओ यस इट वॉज अ डोर, वो तो एक दरवाज़ा था। I found the knob and turned it. फिर मैंने ढूंढा, क्योंकि अब सामने कुछ दिख तो रहा नहीं था लेकिन पता था ये दरवाज़ा जैसा लग रहा है, तो उसने ढूंढा। फिर फाइनली ही फाउंड द नॉब, और उसने नॉब को जो है खोला। और what happened, जैसे उसने नॉब को टर्न किया, and at once as the door swung inward on its hinges, the whole interior of the laboratory became visible. Now just imagine, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एज इफ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अचानक से उसको लगा ओके ये नॉब है, उसने उसे टर्न किया और जैसे ही खुला द एंटायर लेबोरेटरी वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। ऐसा लगा कि एक सेकंड पहले यहाँ कुछ नहीं था और अब पूरी की पूरी जो लेबोरेटरी थी उसके सामने थी। इट वॉज इंडीड स्टार्टलिंग, दिस सडन चेंज फ्रॉम नथिंगनेस टू लाइट एंड फॉर्म एंड कलर। और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, एक्साइटिंग था। एक सेकंड पहले अगर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो ऐसा लगा खाली मैदान है, और जैसे ही वो इनविजिबल दरवाज़ा ओपन हुआ तो अंदर उसने आके क्या देखा, एकदम जहाँ कुछ नहीं था, नथिंगनेस, उससे आपके पास एक फॉर्म आ गया, कलर आ गया, लाइट आ गया। फॉर्म मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। तो जो लेबोरेटरी है उसका अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कलर्स दिखने लग गए, लाइट दिखने लग गई। What do you think of it, huh? Lloyd asked. Lloyd ने बोला कैसा लगा? I slapped a couple of coats on absolute black on the outside yesterday afternoon to see how it worked. उसने फाइनली वो परफेक्ट ब्लैक कलर बना लिया था। और उसने क्या बोला, कल रात को मैंने क्या किया, मैंने कुछ जो मैंने ब्लैक कलर बनाया, उसके कुछ जो कोट्स थे वो बिल्डिंग पे कर दिए थे बाहर की तरफ, देखने के लिए कि कैसा वर्क करता है। Long we talked that last morning in his laboratory, and when I turned to go, he said, "Now I shall conquer the world." उस दिन हमने बहुत लंबी बातें करी, बहुत देर तक बातें करी। I was literally happy for my friend. जब मैं जा रहा था तब उसने बोला, अब मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। Now I will conquer the world. Conquer का मतलब क्या होता है, मैं पूरी दुनिया जो है जीत लूँगा, मैं उस पर अपना जो है अपनी हुकूमत चला सकता हूँ, मैं उसको पूरा कब्जा कर सकता हूँ। बेसिकली ही वॉन्टेड टू से दैट आई विल रूल द वर्ल्ड। लेटर दैट आफ्टरनून आई वेंट टू मीट पॉल। एज आई केम स्पिनिंग अप द ड्राइववे ऑन माई व्हील, पॉल कॉल्ड मी फ्रॉम द टेनिस कोर्ट। अब उसी आफ्टरनून को उसने क्या सोचा कि मैं पॉल के घर चला जाता हूँ। आई वेंट टू मीट पॉल, मैं पॉल से मिलने जा रहा था। एज आई केम स्पिनिंग अप, अब मतलब स्पिनिंग मतलब वो अपनी कार में बैठा हुआ है तो व्हील्स चल रही है, तो वो उसकी ही बात कह रहा है। एज आई केम स्पिनिंग अप द ड्राइववे, मतलब जब मैं रास्ते में आ रहा था पॉल ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला टेनिस कोर्ट आ जाओ। आई गॉट डाउन एंड वेंट ओवर, मैं उतरा अपनी कार से और मैं जो था उससे मिलने चला गया। बट द कोर्ट वॉज एम्प्टी, उसने मुझे बोला टेनिस कोर्ट आओ, मैं टेनिस कोर्ट पहुंच गया लेकिन टेनिस कोर्ट में तो कुछ था ही नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। As I stood there, gaping open mouth, a tennis ball struck me on the arm. अब जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था कि यार क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे, यहाँ तो कोई है नहीं। Gaping open mouth, gaping मतलब अब जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है, आप यॉन कर रहा था तो वो भी अपना मुंह फाड़ रहा था, क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। A tennis ball struck me on the arm, और सडनली एक टेनिस बॉल आई और मुझे लगी मेरे आर्म पे। As I turned about, I saw a rainbow flash appearing and disappearing and darting over the ground. तो जैसे ही मैंने पीछे देखा मुझे कोई नहीं दिखा, एक रेनबो फ्लैश दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे ना एकदम रेनबो के जैसे 7 कलर्स होते हैं, तो एक रेनबो फ्लैश दिखा, कभी इधर दिख रहा था कभी उधर दिख रहा था। I realized with amazement that Paul too had succeeded.
तो जैसे ही मैंने देखा, मैं एक बार में समझ गया कि पॉल जो है वो उसको भी सक्सेस मिल गई अपने एक्सपेरिमेंट में, उसने भी ये जो इनविजिबिलिटी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको जीत लिया है, उसको हासिल कर लिया है। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी के पीछे जा रहा था, वो ट्रांसपेरेंसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उसने अचीव कर लिया है। I ran after the rainbow flash with a racket in hand. तो मेरे हाथ में रैकेट था, तो मैं उसके साथ ही दौड़ पड़ा उसके पास, मतलब वो जो रेनबो फ्लैश था मैं उसके पास जाने लग गया था। When I had laid the racket upon it for a half dozen strong blows, Paul's voice rang out, "Enough, enough! Oh, ouch! Stop! I only wanted to see my metamorphosis." तो क्या हुआ, जैसे ही मैं उसके पीछे गया और मैंने अपने रैकेट से जो उस रेनबो फ्लैश को बहुत मारा, तो फाइनली पॉल ने क्या बोला, ओ ओके, ओ स्टॉप, आउच, मैं तुम्हें सिर्फ अपना मेटामॉर्फोसिस दिखाना चाहता था। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज, a process in which somebody or something undergoes a complete change। मतलब मैं जो एक complete change के थ्रू जो प्रोसेस किया है मैंने, मैं तुम्हें बस वही दिखाना चाहता था। A few minutes later, we were playing tennis. अब invisible Paul और हमारे स्पीकर टेनिस खेलना स्टार्ट करते हैं। I was at a disadvantage, of course, for I could have no knowledge of his position. अब यहाँ पे जब आप टेनिस खेलते हो तो आपको सामने वाला दिखता है, उसे आपको पता है वो किस जगह से हिट कर रहा है, किस डायरेक्शन में हिट कर रहा है, बट यहाँ पे उसके पास एक डिसएडवांटेज था कि उसे पता ही नहीं था वो हिट कहाँ से कर रहा है। एक्सेप्ट For when he flashed like a rainbow, सिर्फ मुझे तब थोड़ा बहुत पता चलता था जब एकदम रेनबो की तरह वो फ्लैश करता था। In the midst of a play, मतलब हमारे गेम के बीच में, जैसे अगर मान लो वो जंप कर रहा है या उसने कुछ बहुत जोर से उसने हिट किया तो वो रेनबो की तरह फ्लैश करता था, तब मुझे पता चलता था कि वो किस तरफ है। Close to the net, I saw a ball rebound in mid-air and empty space. अब क्लोज टू द नेट मतलब नेट के पास मैंने देखा एक बॉल जो है वो हवा में है, एंड एम्प्टी स्पेस मतलब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो एक बॉल मुझे हवा में दिखी। एट द सेम इंस्टेंट सम फीट अवे पॉल चिक्लोन गेव आउट अ रेनबो फ्लैश, और उसी टाइम पे थोड़े दूर में पॉल जो था उसका रेनबो फ्लैश दिखा मुझे। Surely he could not be the one from whom the ball had rebounded. अब पॉल जो है वो काफ़ी दूर पे था, उसको रेनबो फ्लैश दिखा, और यहाँ नेट के पास उसको एक बॉल दिखी जो रिबाउंड हो रही थी। रिबाउंड का मतलब जो बाउंस बैक हो रही थी। तो यहाँ से पॉल तो नहीं हो सकता, पॉल तो काफ़ी दूर पे था। कौन था ये? With sickening dread, I realized that Lloyd Inwood had come upon the scene. With sickening dread का मतलब क्या है? Causing great annoyance or disappointment, fear। मतलब जैसे ही मैंने देखा कि ये दोनों राइवल्स हैं, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये दोनों ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसे अचीव कर लिया है, तो मुझे ज़ोर से डर लग गया। आई वॉज लिटरली स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड कि अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉयड आ चुका था। टू मेक सर्टेन आई लुक्ड फॉर हिज शैडो, और मुझे अब अगर कंफर्म करना था कि हाँ ये लॉयड ही है, तो मैंने उसकी शैडो को ढूंढना कोशिश किया, एंड देयर इट वाज अ शेपलेस ब्लॉच मूविंग अलोंग द ग्राउंड। अब वो एकदम जीरो शैडो तो नहीं कर पाया, सो इट वाज अ शेपलेस ब्लॉच। ब्लॉच का मतलब क्या होता है? अ लार्ज इरेगुलर पैच और अनसाइटली मार्क, मतलब एक पूरा ह्यूमन बॉडी का जो था शैडो नहीं था, एक बहुत ही इरेगुलर सा मार्क था। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरीके से जो है एक मार्क था, जैसे इस तरीके का एक ब्लॉच था जो उसको अपेयर हो रहा था। I felt sure that all the long years of rivalry were about to culminate in frightful battle. अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो इतने सालों से जो इनकी दुश्मनी चल रही है, अब वो जाके कल्मिनेट होने वाली है। कल्मिनेट का मतलब क्या है? अब उसका क्लाइमेक्स आने वाला है इन फ्राइटफुल बैटल, जो कि एक बहुत ही घमासान युद्ध में ख़त्म होने वाला है। I heard a snarl as of a wild beast and as answering snarl। तो अब जब दो लोग एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से, जैसे कि WWF में नहीं होता कि एक ने स्नाल किया, स्नाल मतलब जो आप एक ग्रंटिंग वॉइस निकालते हैं, तो इस तरीके की एक आवाज़ एक जगह से आई और दूसरी जगह से उसका रिप्लाई आया विद अनदर स्नाल।
I saw the dark blotch move swiftly across the court and a brilliant burst of varicolored light moving with equal swiftness to meet it. और मैंने क्या देखा उसके बाद कि एक जगह से वो जो ब्लॉच था, वो जो शैडो जैसा दिख रहा था, वो रन करते हुए गया और दूसरी जगह से रेनबो फ्लैश जो था वेरी कलर्ड मतलब विद अ लॉट ऑफ कलर्स। तो ये दोनों जो थे एक दूसरे की तरफ आए। एंड देन शैडो एंड फ्लैश केम टुगेदर और दोनों जो थे वो एकदम पास में आ गए। एंड देयर वॉज द साउंड ऑफ अनसीन ब्लोज। अब नाउ दे स्टार्टेड टू हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को मारने लग गए। तो जो है अब कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन ब्लोज की आवाज आ रही थी, जो आप किक कर रहे थे या पंच कर रहे थे उनकी आवाजें आ रही थी। द नेट वेंट डाउन बिफोर माई फ्रंटेड आईज। जब अब वो झगड़ा कर रहे थे तो मे बी कि वो नेट के ऊपर गिरे थे, तो नेट जो था पूरा जो टेनिस कोर्ट का वो गिर गया वहां से। The noonday sun beat down with dazzling brightness on the naked tennis court. All I could see was the blotch of shadow and the rainbow flashes, the dust rising from the invisible feet. एकदम जो था सन जो था वो अपने इट वॉज लाइक अ नून डे, मतलब दिन का टाइम था। सन की पूरी जो रेज थी वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है नीचे आ रही थी, विच मीन्स इट वॉज रियली हॉट। एंड ऑल ही कुड सी, नथिंग वॉज देयर इन द टेनिस कोर्ट। उसको सिर्फ दो चीज़ें दिखाई दे रही थी, एक शेडो जो एक ब्लॉच का शेडो था और उसको रेनबो फ्लैश दिखाई दे रहा था। अब क्या क्या हो रहा था, द डस्ट राइजिंग फ्रॉम द इनविजिबल फीट। अब जमीन पे जब वो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो जो उनके पैरों से जो डस्ट उड़ रही थी वो उसे दिखाई दे रही थी। द अर्थ टीयरिंग अप फ्रॉम बीनीथ द स्ट्रेनिंग फुट ग्रिप्स। अब जब आप जो हो बहुत जोर से कहीं पैर रखते हो तो वहां की मिट्टी थोड़ी सी निकल जाती है या थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। द अर्थ टीयरिंग अप मतलब अर्थ का मतलब है यहाँ पे मिट्टी से, मिट्टी जो थी वो पूरी उखड़ रही थी, वहां से टीयर हो रही थी फ्रॉम बीनीथ द स्ट्रेनिंग फुट ग्रिप्स। स्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत ग्रेट एफर्ट, जैसे अभी आपको कोई पंच कराए तो आपने बहुत ग्रेट एफर्ट से अपना जो पैर है वो जमाया हुआ है, तो उससे क्या है वहां की मिट्टी निकल रही थी। एंड द वायर स्क्रीन बल्ज वंस और ट्वाइस एज देयर बॉडीज होल्ड अगेंस्ट इट। अब जो है नेट तो निकल गया, लेकिन वहां पे जो स्क्रीन था, वायर स्क्रीन जो है वो बल्ज होता था कि कभी है ना उसमें दिख रहा था कि आपको सामने वाला आदमी नहीं दिख रहा, लेकिन एक बल्ज दिख रहा है कि कोई मे बी उसके ऊपर गिरा है और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा था। दैट वॉज ऑल एंड आफ्टर अ टाइम इवन दैट एंडेड। ये जो फाइट थी ये चल रही थी और ये हमेशा जो हमारे स्पीकर थे वो पीस मेकर का काम करते थे। वो कोशिश करते कि दोनों लड़ाई न करें, लेकिन अब इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये कुछ नहीं कर सकते थे। द राइवलरी वॉज इंटेंस एंड सो वॉज द फाइट। थोड़ी देर बाद वो फाइट खत्म हो गई। There were no more flashes and the shadow had become long and stationary. थोड़ी देर बाद वो पूरी फाइट खत्म हो गई। अब कोई रेनबो फ्लैश नहीं दिख रहा था और जो शैडो थी इट बिकेम लॉन्ग एंड स्टेशनरी, मतलब शैडो भी रुक गई थी। इट बिकेम लॉन्ग, वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम वर डेड। इस फाइट में उन दोनों जो थे उन दोनों ने दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड दिस वॉज द एंड ऑफ आवर स्टोरी. Now, of course, this was a very tragic end, but this happens when you take the competition more than it should be taken into consideration. अगर आप एक कंपटीशन को हेल्दी वे में नहीं लेते, अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए जब आप कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आता. एंड दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. नाउ विद दिस ट्रैजिक एंड we are done and we come at the end of the story. I hope you liked it. A lot of things to discuss, a lot of things to think upon, क्योंकि साइंस के बहुत सारे हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स जाने हैं एंड एक स्टोरी जो डेफिनेटली अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को आप पॉजिटिवली कैसे लेके जा सकते हो वो आपको सोचना है. नेगेटिवली लेके जाओगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है. सो दैट इज इट for this particular video. We are done here. I'm going to see you around. I'm going to see you soon in my next video where we are going to discuss the summary and the question answers of this chapter. Stay tuned with me. Take care of yourselves. Bye bye.